Hello students, welcome in my channel King Techno. Today we discuss about the topic related with the fundamental of electronic spreadsheet, and it's not about the fundamental, it's advanced program with electronic spreadsheet, which is CalC. Okay, and today's topic with consolidation of your data. So what is consolidation and what's about the data used with the consolidation? We just open our software, which is CalC. Okay, so first we just type CalC with our search program and then press enter. So our CalC program will be here, and here you just see about the combination of row and column, means this is the worksheet of your CalC. Okay, now we just make the consolidation. What's about the consolidation? We just type here about data consolidation. So this is our topic about data consolidation, and it is a process of collecting and integrating data. Okay, so we just use notepad to make some documentations. Okay, so what is data consolidation? Data consolidation is nothing but it is a process of collecting and integrating data, that is consolidating. Okay, so it is the meaning of the consolidation is about the collecting and integrating your data. So it is the consolidating, okay, from multiple sheet, okay, or you can say source also. So here in our CalC we just use multiple sheets, so we just think about the CalC and their sheet also. Okay, so it is about the single destination. Okay, consolidation is just consolidate your data. It just collect and integrate your data in any another source type of your sheet. Okay, so it's about the destination sheet, while applying a specific function. Okay, such as sum function, count function, etc. Okay, you can use much of functions with consolidation. तो स्टूडेंट्स कैसे करना है इसको, तो वो चीज़ अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं. तो हम फिर से वापस अपने कैलसी पोर्शन पे चलते हैं. सो इट्स अबाउट द डेटा कंसोलिडेशन, एंड we just maintain some expenses here. Okay, in day 1 we just give 100, and day 2 we just give 200, and we just make a range on of this data. Okay, so we just use data from day 1 to day 8. Okay, this is all for sheet 1. Okay, we just also use such type of format in our second sheet. Okay, since, and we just change some data here also. Okay, so we just use next value about
1100, 1200 and so on. Okay, so we just also make this type of range. Now we just use this data also. It's all about seed 3. Okay, so we just use here 2100 and 2200 here again. Now we have first seed with this type of data, second seed for such type of data, and seed 3 for such type of data. Okay, now we just make a next seed with ओके, सो स्टूडेंट्स हमने सीट 4 ले ली, ठीक है। यहाँ सीट 1 में ये डेटा था, सीट 2 में ये डेटा था, सीट 3 में ये डेटा है, एंड सीट 4 भी अब हम लोग ले रहे हैं। और सीट 4 जब लेते हैं तो फिर यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेशन कर रहे हैं। कंसोलिडेशन का मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि ये अलग अलग एरिया से, अलग अलग सोर्सेस से डेटा उठाता है और फिर उस पर कुछ फॉर्मुलेशन, जो भी फॉर्मूला आप चूज करोगे उस फॉर्मुलेशन के साथ ये डेटा नेक्स्ट जो न्यूली डेस्टिनेशन होता है उस जगह पे रख देगा। ओके, तो इससे आपको फ़ायदा होता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, कई सारे अलग अलग जो डेटा आते हैं उस पर अगर कुछ काम करना है तो आप कंसोलिडेट कर सकते हो बहुत ईजिली। ओके, तो यहाँ पे हम कंसोलिडेशन करेंगे, ठीक ना। तो जो सीट 4 हमारी होगी इसमें हम लोग सीट 3 के जैसा ही एक फॉर्मेट ले लेते हैं। ये सीट 3 का एक फॉर्मेट हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, नाउ वी जस्ट कंसोलिडेट आवर डेटा। ओके, तो देखिए डेटा में जाते हैं, डेटा में यहाँ कंसोलिडेट ऑप्शन मिलेगा। कंसोलिडेट ऑप्शन हमने यहाँ चूज़ किया है और आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका जो फंक्शन टाइप है वो सम का है। सम मीन्स टोटल होता है और यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे और भी अलग अलग फंक्शंस देखने को मिलेंगे। ओके, तो अभी हम सम को लेते हैं। यहाँ पे रेंज क्रिएट करना है। रेंज हमको कहाँ से लेनी है, तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इस वाली जगह पे आपको क्लिक करना है। तो हम क्लिक कर दिए। नाउ मेरा फर्स्ट सीट जो है वो हम यहाँ से ओपन करेंगे और ये सेलेक्ट कर लेंगे कि हमको यहाँ से यहाँ तक का रेंज जो है डेटा का वो चाहिए। नाउ नेक्स्ट ऐड, देखिए ऐड कर दिया। सीट 1 B3 से B10 तक की वैल्यू आ गई। अभी हमको फिर से यहाँ पे क्लिक करना होगा, जो नेक्स्ट सीट है वहाँ पे जाकर के डेटा लेना होगा। तो यहाँ से भी हमने रेंज क्रिएट कर लिया। ओके, ये 9 तक गया है, इसको 10 तक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, इसको भी ऐड कर लेंगे। फिर वापस से इस पे क्लिक करते हैं और सीट 3 पे पहुंचते हैं और यहाँ से भी डेटा जो है वो हम उठा लेंगे और ये वापस इस जगह पे ला करके ऐड कर देते हैं, ठीक। तो इतनी चीज़ तो हो गई। अभी बात आ रही है कि जो डेस्टिनेशन है वो किस जगह पे जानी चाहिए। तो सीट 4 जो है यहाँ पे हमको डेस्टिनेशन मिलना है, तो डेस्टिनेशन आउटपुट यहाँ पे आता है, ठीक ना। आपको क्लिक करना है और यहाँ एक सिंगल क्लिक करके छोड़ दीजिए आप इसको। ओके, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली ओके। आप देखिए वैल्यू जो है यहाँ पे 3300 आ रही है। हमने सम फंक्शन को यूज़ किया था। और सीट 1 का डेटा देखते हैं, जो फर्स्ट डेटा है इसी को देख लेते हैं। यहाँ से 100 है, सीट 2 से 1100 है, अगर इनका सम होगा तो ये आ जाएगा 1200। और सीट 3 जो है हमारा, यहाँ से हम 2100 ले रहे हैं और उधर 1200 था ऑलरेडी, तो इनकी जो टोटलिंग है वो 3300 है। और आप देख रहे हो कि सीट 4 में जो डेटा बन के आ गया है वो 3300 का है। इसी तरह से नीचे के भी जो डेटा हैं वो भी टोटल हो गए हैं। तो इस तरह से आपका जो है कंसोलिडेशन आपने परफॉर्म किया, ठीक। आप इसको डिलीट कर सकते हो, डिलीट ऑल सेल।
अब हमको क्या करना है, वापस से कंसोलिडेट में जाना है, फिर कोई दूसरे फंक्शन को भी लेकर के जो है वो हम इस पे काम कर लेंगे। तो एक बार कंसोलिडेट पे जाते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे रेंज पहले से सेलेक्ट है, हमको बस फंक्शन चेंज करना है। हम काउंट फंक्शन ले लेते हैं। काउंट जो होता है ये देखता है कि नंबर्स कितने हैं, ठीक ना, कितने नंबर्स लिखे गए हैं सेल में, ठीक। तो सेल 1 में भी नंबर है, सेल 2 में भी नंबर है, सेल 3 में भी नंबर है। तो काउंट जो है वो 3 आपको दे देगा। अगर सेल 1 में नंबर है, सेल 2 में कुछ नहीं है, सेल 3 में नंबर है, तो काउंट जो डिस्प्ले करेगा वो होगा 2, ठीक। तो इस तरह से काउंट फंक्शन जो है वो देगा 2। लेकिन यहाँ पे 3 दे रहा है, क्यों? क्योंकि जब हमारा सीट 1 जब देखेगा तो सीट 1 में भी उसको डेटा मिलेगा, सीट 2 में भी डेटा मिलेगा, सीट 3 में भी डेटा मिलेगा। तीनों में डेटा है, इसका मतलब उसको 3 दिखाना है। ओके, तो ये चीज़ थी। वापस से हम लोग एक बार और देख लेते हैं। तो कंसोलिडेट में जा रहे हैं, बाकी चीज़ें आपको बताई गई थी, ठीक ना। यहाँ पे एवरेज को ले लेते हैं। तो एवरेज लेकर के अगर हम ओके करेंगे तो देखिए एवरेज 1100 निकल रहा है। अब 1100 निकलेगा कैसे? तो 3300 टोटल आया था इसका, और 3 सेल हैं तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, और उसके बाद फिर उससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 1100 का निकल करके आएगा। ओके, तो ये तरीका था कंसोलिडेशन का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंसोलिडेट किस तरह से किया जाता है। कंसोलिडेशन आपको दिखा दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं, यहाँ पे अपनी डेटा वैल्यू चेंज करते हैं। कंसोलिडेशन तो आपको दिखा दिया गया। यहाँ पे एक कैलकुलेटिंग सब टोटल फॉर्म भी मौजूद है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक डेटा जो है वो क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो डेटा पहले क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर सब टोटल आपको दिखाते हैं कि सब टोटल किस तरह से बन करके आपके सामने आएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे आपको एक डेटा रेंज दिखाया जा रहा है। यहाँ इतनी वैल्यूज़ आपके सामने रखी हुई हैं। एक जोन है जो कि इस तरह से वैल्यू शो कर रहा है, एक प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस तरह से वैल्यू शो कर रहे हैं। इसके बाद आपको सेल्स मिल रही हैं, तो सेल्स में इस तरह की वैल्यूज़ जो है वो रखी गई है, ठीक। हमको क्या करना है, हमको सब टोटल करके इनकी ग्रुपिंग का टोटल निकालना है, ठीक ना। तो इनकी ग्रुपिंग भी करनी है और साथ में इसका टोटल भी निकालना है। तो क्या करना होगा, पहले हम क्या करेंगे, इनके जो कॉलम हेड होते हैं, इन कॉलम हेड के साथ इनको हमको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब हमको क्या करना है, तो अब हम जो है वो सब टोटल को फाइंड आउट करेंगे। ये डेटा में मिलता है सब टोटल ऑप्शन, आप इस पर चले जाओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप जो है वो इसने दिखाया कि ये जोन से फर्स्ट ग्रुप दिखाना चाहता है, ठीक ना, या प्रोडक्ट से या सेल से। तो आपको ग्रुपिंग करनी है, तो हमको यहाँ पे ग्रुपिंग टाइप की वैल्यू जो है वो दिख रही है जोन में, ठीक। तो जोन में दिख रही है, तो हम अगर जोन को सिलेक्ट कर लेंगे तो जोन से जो है वो ग्रुपिंग हो जाएगी। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि इस जोन में, यानी जैसे आप यहाँ से देख लो कि यहाँ पे जो ए की वैल्यू है, इस ग्रुप का जो पोर्शन है उसमें आपको क्या करना है, तो आपको टोटलिंग करनी है कि आपको काउंटिंग करनी है, एवरेज करना है, मैक्स करना है, मीन क्या करना क्या है आपको, ठीक है। तो हम सम को ही लेते हैं बाय डिफॉल्ट, अभी इसी को लेकर के चलते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है वो हमको यहाँ पे मिल रही है, हमने यहाँ पे जोन जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। ओके, इसके बाद अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि आप देखो यहाँ पे ग्रुप्स और भी हैं। तो अगर आप यहाँ पे और भी ग्रुप बनाना चाहते हो तो आप उसको भी बना सकते हो। फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको ओके करके रख लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए जैसे ही हमने ओके किया तो आप देखो यहाँ पे जोन का जो है वो 0 वैल्यूज़ जो है वो दिखा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे ग्रुपिंग जो है वो 0 के बेस पे चल रही है, ठीक। जबकि हमारे पास यहाँ पे टोटलिंग इधर से भी आ सकती थी, तो हम इधर से भी ग्रुपिंग करके एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे वापस से डेटा पे चले जाते हैं, वापस से सब टोटल पे चले जाते हैं। यहाँ पे सेल्स जो है उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, सम कर लेंगे और यहाँ पे ओके कर देते हैं, ठीक। तो देखिए आप दिखेगा कि जो ए वाला सम है वो टोटली इतनी वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपको इतनी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। फिर जो बी का है वो बी के लिए इतना मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो कि इधर से जो हमको पूरी की पूरी वैल्यूज़ जो मिल रही हैं वो इस तरह से मिल रही हैं। इनका ग्रैंड टोटल भी आपको दिखा दिया गया है। तो ये एक ज़्यादा बेनिफिशरी वे है जब हम लोग किसी लॉन्ग सीट पे काम कर रहे होते हैं और उसमें
जो नंबर ऑफ डेटा जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भी हम लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हैं और इस तरह से बहुत स्मार्टली वर्क करके हम टोटलिंग पा जाते हैं ग्रुप वाइज। ठीक, तो ये तरीका जो है वो हम लोगों को सब टोटल निकालने के लिए होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो ये ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछ लीजिएगा कि क्या आपको प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ओके, थैंक यू।